morning, students. Now in last lecture we have seen is number 3. In that we have seen first fourth transaction. Now today we start from fifth number transaction, that is date number 16. Date number 16. Now what is that? So paid of income tax of rupees 500. Paid of income tax of rupees 500. Now income tax. So as we have discussed earlier, income tax is personal expense. Income tax is personal expense of the owner, and whenever personal expense of the owner is given from business, it is recorded in which account? Drawing account. So here one account is of drawing, and drawing is always debited because here owner of business is receiver, है ना. बेनिफिट वो क्या करता है? रिसीव करता है. एंड पेड, whenever paid word is there, it means what? कैश goes out from business, है ना. कैश क्या होगा? बिजनेस से आउट. और कैश आउट होगा तो कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट. अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोes out, because cash account is account of real. Clear? So here there are two accounts. What is first one? So drawing account, and drawing account is what? Debited to cash account. How many rupees we have paid? So 500. So 500 debit and 500 credit. Now what is being? So being income tax paid from business. Now you must know income tax is what? Personal expense of the business. It is not business expense, है ना. और जब भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस में से पे करता है तो क्या होता है उस टाइम पे? उसका ड्राइंग अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है, बिकॉज ही इज रिसीवर. बेनिफिट रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस, एंड बेनिफिट रिसीवर अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रूल्स. क्लियर? अगर आपको इतना सब याद नहीं रखना है, सो यू हैव टू रिमेंबर ड्राइंग अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड. क्लियर? Now next transaction, that is withdrawn rupees 1000 from business for personal use. Now here what we have done? Withdrawn rupees 1000 from business for personal use. Whenever personal use word is there in transaction, personal use word is there, you have to understood there is a drawing. उसमें क्या है? Drawing, and drawing account is always debited. नाउ क्या विड्रॉ किया है? कैश. क्या विड्रॉ किया है? कैश. नाउ व्हेन ओनर विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस, कैश कम्स इन बिजनेस और कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस. सो कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस. तो यहाँ पे कौन कौन सी एंट्री आएगी? डेट नंबर इज 20. अगेन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश. How many rupees withdrawn? 1000. So here it is 1000, and here also it is 1000. What is your being? Being cash withdraw from business for personal use. So in this way we have to write down this journal entry. यानी बिजनेसमैन बिजनेस में से जब कैश विड्रॉ करता है, किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए. तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करना है और कैश अकाउंट क्या करना है? क्रेडिट करना है. बिकॉज कैश गोज आउट, दैट्स व्हाई क्रेडिटेड, एंड ओनर ऑफ द बिजनेस इज रिसीवर, दैट्स व्हाई रिसीवर अकाउंट इज डेबिटेड. मैंने आपको पहले बताया है
ओनर्स के अकाउंट दो है, एक कैपिटल अकाउंट एंड एक ड्राइंग अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कब आता है? जब बिजनेसमैन बिजनेस को कुछ देता है, और ड्राइंग अकाउंट कब आता है? जब बिजनेसमैन को कुछ देता है या बिजनेसमैन कुछ बिजनेस से लेता है। क्लियर? सो हियर वी हैव सीन these two transaction. Now next transaction is what? Paid rupees 200 for life insurance premium from business. So क्या किया है हमने? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। पेड रुपीज 2000 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम बिजनेस। अब लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ किसकी होती है? ओनर की। क्लियर? तो आपको याद रखना है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज पर्सनल एक्सपेंस। Life insurance premium is what? Personal expense of the owner. And whenever personal expense of the owner is paid from business, which account is recorded? Drawing account. And drawing account is always what? Debited. और कैसे पे किया यहाँ पे? In cash. In cash. तो cash will goes out. अब जब cash goes out होगा तो क्या होगा? Cash account क्रेडिट। तो यहाँ पे भी कौन सी एंट्री होगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हाउ मेनी रुपीज? सो 200। कितना? 200। क्लियर? तो इस तरह से देखो, अब आपको मैंने समझाया सर यहाँ पे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट है, यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट है, यहाँ ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट है, यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो इसके हम कंबाइन एंट्री पास नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? ये दोनों डेट कौन कौन सी है? अलग अलग है। देखो, अगर एक ही डेट में एक ही टाइम पे अगर एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होता है तो ही हम कंबाइन एंट्री पास करते हैं। बराबर? तो यहाँ पे कंबाइन एंट्री पास होगी नहीं। सो 22 नंबर पे कौन सी एंट्री आएगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना प्रीमियम पे किया है? 200। तो हियर 200 डेबिट कॉलम में और हियर इन क्रेडिट कॉलम में। जो अकाउंट डेबिट होता है उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखना है, जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखना है। क्या आएगा यहाँ पे? बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम paid in cash. Being life insurance premium paid in cash और being life insurance premium paid from business। बराबर? तो इस तरह से आपको being भी लिखना है। Now next transaction, withdrawn goods of rupees 400 for personal use from business। अब यहाँ पे एक नई चीज आई आपके लिए, क्या है? विड्रॉन गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। नाउ रिमेंबर, व्हेनेवर गुड्स गोस फ्रॉम बिजनेस अदर देन सेल्स, यानी कि हमने सेल्स नहीं किया है और बिजनेस में से गुड्स जा रहा हो तो उस समय पे परचेस अकाउंट क्रेडिट करना है। क्लियर? ये नई चीज आपके लिए। आज तक मैंने आपको क्या समझाया है? परचेस अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड। बराबर? लेकिन अभी जब बिजनेस से गुड्स जा रहा हो, और गुड्स कैसे जा रहा हो? अदर देन सेल्स, यानी हमने सेल्स नहीं किया है फिर भी जा रहा है, उस केस में परचेस अकाउंट क्रेडिट करना है। क्लियर? तो एक तो हो गया परचेस अकाउंट क्रेडिट। दूसरा, किसके लिए गुड्स विड्रॉ किया? पर्सनल यूज। एज आई टोल्ड, जब भी पर्सनल यूज वर्ड ट्रांजैक्शन में आता है तो कौन सा अकाउंट को इफेक्ट होगा? ड्रॉइंग अकाउंट को, बिकॉज ओनर ऑफ द बिजनेस इज रिसीवर। बिजनेस जो है, ओनर जो है बिजनेस का, वो क्या करता है? गुड्स रिसीव करता है। कहां से? बिजनेस में से। क्लियर? तो यहां पे भी कौन सा अकाउंट आएगा? डेट नंबर 25। एक आएगा आपका ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। कौन सा अकाउंट आएगा? परचेज अकाउंट। कितने रुपीस है? 400। जितने का गुड्स विड्रॉ करता है उतना अमाउंट लिखना है डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम के अंदर। क्लियर? तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कब करना है? व्हेन गुड्स
गोस फ्रॉम बिजनेस अदर देन सेल्स। और ऐसे कितने वेज है जिसमें में गुड्स आउट होता है अदर देन सेल्स। तो याद रखना, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन इन एडवर्टाइजमेंट, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय रेंट, गुड्स गॉन बाय थेफ्ट, गुड्स गिवन इन चैरिटी। तो ये सारे केस में क्या होता है, गुड्स बिजनेस से जा रहा है, क्लियर, लेकिन उसके सामने हमें पैसे मिलते नहीं है। तो उस केस में परचेज अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्लियर। और जिस वे से गुड्स जा रहा हो उसको क्या करना है, डेबिट करना है। यहाँ पे गुड्स किस वे में किया है, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। और पर्सनल यूज आएगा तो क्या करना है, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करना है। दैट्स व्हाई आई हैव डेबिटेड ड्राइंग अकाउंट एंड परचेज अकाउंट इज क्रेडिटेड। बीइंग क्या लिखना है, बीइंग goods taken for personal use, ऐसे लिखना है, being goods taken for personal use, क्लियर। तो आपको अब याद रखना है, जब भी goods withdrawn for personal use, which two accounts are there, first drawing account क्योंकि personal use के लिए है, और दूसरा goods goes from business other than sales, purchase account is credited। तो कौन सा अकाउंट आएगा, दूसरा purchase account, क्लियर। और जब भी गुड्स जाता है तो गुड्स किस में आता है, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। तो हम जब गुड्स घर के लिए ले जाते हैं, बिजनेस में जब गुड्स अपने घर के लिए लेके जाता है तो क्या होगा, गुड्स इन क्या आउट, गुड्स विल आउट, क्लियर। Now last, what is last one? College tuition fees of son rupees 500 paid from business। अब कॉलेज की फीस पे की है हमारे सन की, कहां से, बिजनेस में से। तो कॉलेज की जो ट्यूशन फी है वो कौन सा एक्सपेंस है, पर्सनल एक्सपेंस, ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है। अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं और आपकी स्कूल की फीस वो बिजनेस से पे करते हैं तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, किसका एक्सपेंस है, ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है। एंड व्हेनेवर ओनर पे हिज पर्सनल एक्सपेंस फ्रॉम बिजनेस इट इज रिकॉर्डेड टू ड्राइंग अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट आएगा, ड्राइंग अकाउंट। और कैसे पे किया है, कैश, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट, तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना रुपया दिया हमने, 500, तो यहाँ पे 500 एंड हियर आल्सो 500, क्लियर। सो व्हेनेवर ओनर ऑफ बिजनेस पे his son or daughter school fees from business it is recorded to his drawing account। और ड्राइंग अकाउंट क्या करना है, डेबिट। और क्या पे किया है, कैश, तो कैश विल गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्लियर। तो यहाँ भी क्या होगा, ये एंट्री होगी। नाउ ऑल ट्रांजैक्शंस आर ओवर, हियर हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस आर गिवन, all transactions are over। So after that what we will do, we have to draw this line, we have to draw this line and we have to do total of this। So what is total of this, so 1,10,600, 1,10,600, 1,10,600। आपको इन तीन का टोटल नहीं करना है, इसके आगे भी आपने जनरली लिखी होगी कल, है ना, उन सबको मिला के टोटल करना, कितना होगा 1,10,600। यानी कि जितनी अमाउंट डेबिट कॉलम में आती है उतनी अमाउंट कहां से आएगी, क्रेडिट कॉलम में। इट मींस व्हाट, डेबिट एंड क्रेडिट बोथ कॉलम टोटल मस्ट बी इक्वल। डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम का टोटल जो करोगे दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इससे पता चलता है कि हमने जनरल एंट्री सही की है, क्योंकि हम कौन सी सिस्टम फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, क्लियर। और डबल एंट्री सिस्टम में जितनी डेबिट इफेक्ट होती है उतनी क्या होगी, क्रेडिट इफेक्ट होगी। तो इन दिस वे वी हैव सीन व्हाट, ट्रांजैक्शन related to capital and drawing। okay, now you have to write down this illustration in your notebook। okay, now we have completed first types of transaction, that is capital and drawing। now let's take exercise। so on page number 102 102 आपकी टेक्स्ट बुक में
क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांजैक्शन फॉर कैपिटल एंड ड्राइंग। आपको भी अपने टेक्स्ट बुक में देखना है ना। व्हाट इज गिवन, राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ शुभम। यानी हमें बुक्स ऑफ शुभम में क्या करनी है, जो हमें ट्रांजैक्शन दी है उसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले आपको ऐसे कॉलम ड्रॉ करना है और हेडिंग क्या देना है, जर्नल बुक ऑफ शुभम। अरे कौन सा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 6, कौन सी एक्सरसाइज नंबर 6। अब मैंने यहाँ पे दो तरह से कॉलम बनाया, देखो डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। आपको अपनी बुक में ऐसा नहीं करना है, आपको तो एक पेज में एक ही बार ड्रॉ करना है, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट, है ना। मेरे पास बोर्ड है इसलिए मैंने इसे ड्रॉ किया है, आप लोग एक ही पेज में ऐसा ड्रॉ मत करना, क्लियर। Now here I have not drawn column LF, मैंने LF का कॉलम ड्रॉ नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ड्रॉ नहीं करना है, मैंने स्पेस को मैनेज करने के लिए ड्रॉ किया नहीं है, क्लियर। और यहाँ पे आपको लिख देना है, क्या लिखना है, अमाउंट इन रुपीस, अमाउंट इन रुपीस, क्लियर। सो इस तरह से हमें लिख देना है। नाउ व्हाट इज फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सो दीज आर ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग। तो आपको ये देखना है, अगर बिजनेसमैन कुछ लेके आता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, अगर बिजनेसमैन बिजनेस में से कुछ लेके जा रहा है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट करना है, और जो कुछ लाता है वो सब डेबिट करना है ना, और जो कुछ ले जाता है वो सब क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्लियर। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, व्हाट इज फर्स्ट ट्रांजैक्शन, introduce goods of rupees 10,000, cash of rupees 15,000, furniture of rupees 5,000 and debtors of rupees 10,000 and commence business। जब भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और जो कुछ भी लेके आता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो सब क्या करना है, डेबिट। और कौन सा अकाउंट क्रिएट करना है, कैपिटल, बिकॉज ओनर ऑफ बिजनेस इज गिवर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2014 January 1st क्या क्या लेके आता है बिजनेसमैन, सो हियर फर्स्ट कैश गुड्स, कैश फर्नीचर, सो कैश अकाउंट डेबिटेड, देन गुड्स अकाउंट डेबिटेड, देन फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, देन डेटर्स अकाउंट डेबिटेड to capital account, clear। So whatever businessman brought, all those accounts are debited। सिर्फ एक चीज अगर बिजनेसमैन लेके आता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, क्या, क्रेडिटर्स और पेबल्स, लेकिन यहाँ पे वो दिया नहीं है। इसके सिवा जो कुछ भी लिया है वो सब क्या करना है, डेबिट, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स कम्स इन बिजनेस एंड ऑल दीज थिंग्स आर असेट्स फॉर business, and whenever assets comes in according to real account, it is debited, and capital account is account of owner of business, and owner of business is giver, and it comes under personal account, and according to personal account, debit the receiver, credit the giver, that's why capital account is credited। So what is the amount of cash goods, so cash amount is 15,000, goods amount is 10,000, then amount of furniture is 5,000 and amount of debtor is 10,000, so here it is 5,000 and here it is 10,000। now total of all these four, so it is how many, 15 plus 10 25, 25 plus 5 30, 30 plus 10 40, तो कितना है कैपिटल में, 40,000। so these what capital of owner। what is your being here, आपको being में क्या लिखना है, being क्या क्या लेके आया, कैश गुड्स फर्नीचर एंड डेटर्स brought in business, क्लियर। तो इस तरह से आपको बीइंग भी लिखना है, बीइंग कैश गुड्स फर्नीचर एंड डेटर्स ब्रॉट इन बिजनेस।
क्लियर। और जो कुछ भी लेके आता है वो क्या करना है, डेबिट। अगर आपको बीइंग लिखना नहीं आता है तो क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन ट्रांजैक्शन। आपको जो एग्जाम में ट्रांजैक्शन दिया हो वो लिख देना है, एक्सेप्ट अमाउंट, अमाउंट के बिना। अगर अमाउंट के साथ भी लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर। नाउ सेकंड ट्रांजैक्शन, पर्सनल मोटर कार सोल्ड फॉर ₹80,000 एंड इंट्रोड्यूस ₹50,000 इन बिजनेस। तो हमने इलस्ट्रेशन में देख लिया था, है ना। यहाँ पे उसका पर्सनल मोटर कार वो सोल्ड करता है कितने में, 80,000 में, लेकिन बिजनेस में कितना पैसा इंट्रोड्यूस करता है, 50,000। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, मोटर कार कितने का है, कितने में बेचा है, वो कुछ देखना नहीं, हमें क्या देखना है, कितना पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, कितना किया, 50,000। अब कौन अपना पर्सनल मोटर कार बेच के बिजनेस में पैसा देगा, ओनर। एंड व्हेनेवर ओनर गिव्स कैश, goods and assets or anything to business, capital account is credited. So here what is giving, cash. So when he give cash, so cash comes in or out, so cash comes in. So what is second date, here date is what is the date, date number is 12. So cash account debited to capital अकाउंट। कितना देता है कैश, 50,000। so 50,000 डेबिटेड एंड 50,000 क्रेडिटेड। हमें जितना पैसा बिजनेस में मिलता है ना उतना ही लिखना है। मोटर कार 80,000 की थी लेकिन इंट्रोड्यूस कितना किया है, 50,000। तो हमें 50,000 अमाउंट लिखनी है, 80,000 नहीं। क्लियर। और यहाँ पे क्या लिखा है, बीइंग पर्सनल मोटर कार सोल्ड एंड कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, एंड कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। अब कितना कैश, तो 50,000। यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा है, यहाँ पे अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। क्लियर। तो जब भी ओनर अपना पर्सनल असेट सोल्ड करता है और उसको बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है तो क्या होता है उसके लिए, कैपिटल। तो क्या एंट्री आएगी, कैश टू कैपिटल। क्लियर। नाउ थर्ड, ₹1,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज आता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या कौन सा अकाउंट आएगा, ड्राइंग। तो यहाँ पे डेट कौन सा है आपका, डेट नंबर इज 13। तो यहाँ पे एक अकाउंट आएगा ड्राइंग। सो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि पर्सनल यूज है ना, बिजनेसमैन ने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए। तो बिजनेसमैन जब भी कोई भी चीज विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए तो उसका ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है। कहां से पैसा विड्रॉ किया, बैंक। अब बैंक कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन। अगर बिजनेसमैन विड्रॉ करेगा मनी फ्रॉम बैंक तो बैंक इज व्हाट, रिसीवर और गिवर। सो बैंक इज गिवर एंड बैंक कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट। So rules of personal account, debit the receiver, credit the giver, है ना। तो हम जब बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं, बैंक कौन होता है, रिसीवर के गिवर, गिवर। तो बैंक का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। और हमने यहाँ पे देख लिया, अगर अकाउंट डेबिट होता है दूसरा क्या होगा, क्रेडिट। तो टू बैंक अकाउंट, कितना पैसा विड्रॉ किया है हमने, सो 1,000। सो 1,000 डेबिट एंड 1,000 क्रेडिट। तो जब भी हम बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको याद रखना है, बैंक अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड बिकॉज बैंक इज गिवर एंड गिवर का अकाउंट अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। एंड व्हेन बिजनेसमैन विड्रॉ गुड्स कैश फॉर पर्सनल यूज it is recorded in his drawing account and drawing account is always debited. So what is the being here, being cash withdrawal from bank for personal use. क्या लिखा बीइंग है, being cash withdraw from bank for personal use. एंट्री क्या है, drawing account debited to bank account. How many, 1,000 and 1,000. तो आपको इस तरह से याद रखना है कि जब भी हम बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं, है ना,
तो बैंक अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, और वो पर्सनल यूज के लिए करते हैं तो ड्राइंग अकाउंट इज डेबिटेड। क्लियर? तो इस तरह से हमें एंट्री पास करनी है। Now next transaction, that is 15. Income tax refund of rupees 500 of owner of sole proprietors deposit with the bank account of business. अब इनकम टैक्स जैसे पर्सनल एक्सपेंस है, सो इनकम टैक्स रिफंड तो भी किसकी इनकम है? ओनर ऑफ बिजनेस। लेकिन इनकम टैक्स रिफंड जैसे बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस के अकाउंट से पे किया था, बराबर ना, तो हमने उसको क्या गिना था? ड्राइंग। जब इनकम टैक्स रिफंड वापस आता है ना इनकम टैक्स से, तो कहां होता है? बिजनेस के अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट, यानी ओनर का पर्सनल मनी है लेकिन वो बिजनेस के अकाउंट में आता है। तो ओनर जब पर्सनल कोई चीज बिजनेस में लेके आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। तो आपको याद रखना है कि जब भी इनकम टैक्स रिफंड बिजनेस के अकाउंट में क्रेडिट होता है तो क्या होता है? कैपिटल, क्योंकि वो ओनर का पर्सनल कैश बिजनेस के अकाउंट में क्रेडिट होता है। अब इनकम टैक्स रिफंड क्या है? तो जो हम इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं उसमें से कभी हमने ज्यादा टैक्स पे कर दिया हो, है ना, तो टैक्स क्या होता है? कभी रिफंड मिलता है, गवर्नमेंट हमको वापस देती है, उसको क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स रिफंड। यानी जो हमने एक्स्ट्रा टैक्स दिया हो या हमने ज्यादा टैक्स दिया हो, है ना, वो गवर्नमेंट कैलकुलेशन करने के बाद हमको वापस देती है हमारे अकाउंट में। तो इनकम टैक्स रिफंड वो क्या है? पर्सनल इनकम है, बिजनेसमैन की पर्सनल इनकम है, उसको हम बिजनेस के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? वो कैपिटल। क्लियर? अब किसका मिलता है? बैंक में मिलता है, तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बराबर ना। और ये डेट कौन सा है? सबसे पहले हमें डेट लिखना है, डेट इज 15। अब बार बार यहाँ पे ईयर एंड मंथ लिखना नहीं है। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया है? बिकॉज बैंक इज रिसीवर, है ना, जो गवर्नमेंट है वो इनकम टैक्स रिफंड करेगी, किसको करेगी? बैंक को। तो बैंक कौन है? रिसीवर। और बैंक कौन है? पर्सनल, है ना, बैंक कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन। एंड व्हेनेवर बैंक इज रिसीवर, बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। दूसरा एक चीज याद रखना है, व्हेनेवर योर बैंक बैलेंस इज इंक्रीज, आपका बैंक बैलेंस जब भी इंक्रीज हो ना तो बैंक अकाउंट डेबिट करना है। एंड व्हेनेवर योर बैंक बैलेंस इज डिक्रीज, आपको बैंक अकाउंट क्या करना है? क्रेडिट करना है। अब गवर्नमेंट जब आपके अकाउंट में इनकम टैक्स रिफंड देगी तो बैंक बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। That's why bank account is what? Debited. And according to rule, bank is receiver. That's why bank account is debited. What is the amount of income tax refund? 500. So here it is 500 and here it is 500. What is the being? Being income tax. Being income tax refund deposited in bank, deposited in business बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, कौन सा बैंक अकाउंट? बिजनेस का। तो ये क्या हो गया? कैपिटल, है ना। इनकम ओनर की पर्सनल इनकम जब बिजनेस के अकाउंट में क्रेडिट होती है तो क्या होती है? वो कैपिटल हो जाती है। क्लियर? तो ये हो गया आपका 15 नंबर का ट्रांजैक्शन। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? फ्रॉम बिजनेस गुड्स ऑफ ₹1000 एंड कैश ऑफ ₹4000 आर विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब मैंने आपको पहले ही समझाया था, जब भी पर्सनल यूज आएगा तो क्या करना है आपको? ड्राइंग अकाउंट डेबिट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कौन सा डेट है यहाँ पे? तो डेट नंबर इज 20। अब क्या विड्रॉ किया है? तो गुड्स एंड कैश, गुड्स ऑफ ₹1000 एंड कैश ऑफ ₹400। अब मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब बिजनेस में से गुड्स पर्सनल यूज के लिए जाएगा तो कौन सा अकाउंट आएगा? परचेस अकाउंट। व्हाई परचेस अकाउंट? सो व्हेनेवर गुड्स गोस फ्रॉम बिजनेस अदर देन सेल्स, परचेस अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो एक आएगा टू परचेस। दूसरा क्या विड्रॉ किया है? कैश। तो whenever cash goes from business, cash account is what? Credited.
है ना, बिजनेस में से कैश जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए कैश ले जा रहा है, तो कैश गोज आउट, एंड व्हेन कैश गोज आउट, कैश अकाउंट इज credited according to real account. So here what is amount of goods, so amount of goods is how many, 1000, तो परचेज अकाउंट में कितना आएगा, 1000. तो what is amount of cash, that is 400, तो यहाँ कितना आएगा, 400. तो डेबिट कितना होगा, 1400. कैसे है 1400, 1000 प्लस 400, तो टोटल कितना ड्राइंग हो रहा है, 1400 का ड्राइंग हो रहा है. तो बिजनेसमैन गुड्स एंड कैश दोनों ले जा सकता है. Whenever businessman withdraw goods and cash both same time, then you have to pass this entry, drawing account debited because owner of business is receiver, है ना. And to purchase, क्यों purchase account, because goods goes from business other than sales, and why cash account, because cash goes from business. So what is the being goods and cash withdraw for personal यूज. क्लियर. तो इस तरह से आपको ये एंट्री पास करनी है. जब बिजनेस में क्या करता हो, गुड्स एंड कैश पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता हो. पर्सनल यूज आए मींस व्हाट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड. क्लियर. एंड गुड्स ले जाता है तो परचेज अकाउंट क्रेडिटेड, और कैश ले जाता है तो कैश अकाउंट क्रेडिटेड. क्लियर. Now next, traveling expense of daughter rupees 1500 paid from business. Now traveling expense है, लेकिन किसका है, डॉटर का है, बिजनेस का नहीं है. अब मैं अपनी डॉटर का ट्रैवलिंग एक्सपेंस बिजनेस से पे करूं तो ये मेरा पर्सनल एक्सपेंस है कि बिजनेस एक्सपेंस है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपेंस है. एंड व्हेनेवर बिजनेसमैन गिव हिज पर्सनल एक्सपेंस फ्रॉम बिजनेस, व्हिच अकाउंट इफेक्टेड, ड्राइंग. तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, ड्राइंग. कौन सी डेट है, 21st, सो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड. ओके. तो कैसे पे किया होगा, कैश. तो दूसरा कौन सा आएगा, टू कैश. जब कोई इंफॉर्मेशन ना होना और पेड वर्ड हो तो कैश अकाउंट ही होता है, हम कैश में ही पे करते हैं, है ना. जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ना हो तब, हाँ ऐसा बोला हो चेक, बाय चेक, तो बैंक अकाउंट आएगा. लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो हमें समझ जाना है कैश में पे किया है. अगर मैं अपने डॉटर का ट्रैवलिंग एक्सपेंस बिजनेस में से पे करूंगा तो कैश इन होगी क्या आउट होगी, कैश अकाउंट आउट, है ना. कैश गोज आउट, व्हेनेवर कैश गोज आउट कैश अकाउंट इज credited. So how many rupees, so here 1500, so 1500 and 1500. What is your being, so being traveling expense of daughter paid. बराबर ना. बीइंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ डॉटर पेड इन कैश. कैश लिखने की जरूरत नहीं है. पेड मींस व्हाट, कैश. पेड कब आता है, जब कैश ट्रांजैक्शन हो तब. क्लियर. तो क्या एंट्री आएगी, ड्राइंग टू कैश. इस तरह से कोई भी एक्सपेंस, अगर हम पर्सनल एक्सपेंस कोई भी पे करते हैं बिजनेस से तो आपको यही एंट्री लिखनी है, ड्राइंग टू कैश. क्लियर. नेक्स्ट, 28, फर्नीचर ऑफ ₹2000 परचेज फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट फॉर हाउस. अब देखो हमने फर्नीचर परचेज किया है, गंगा फर्नीचर मार्ट से परचेज किया है, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि नाम दिया है गंगा फर्नीचर मार्ट. फॉर हाउस यानी घर के लिए. अब फर्नीचर परचेज किया घर के लिए और पैसा दिया है बिजनेस से, है ना. हमने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है घर के लिए लेकिन पैसा किया है बिजनेस से, बराबर ना. हम पैसा कहां से देंगे, बिजनेस से. तो क्या हो जाएगा ये, ड्राइंग. सो व्हेनेवर यू परचेज एनी असेट्स फॉर पर्सनल यूज, फॉर हाउस मींस व्हाट, पर्सनल यूज, तो क्या कहलाएगा है, ड्राइंग. यहाँ पे आपको ये लिखना नहीं है, कौन सा डेट है यहाँ पे, 28. अगर हमने बिजनेस के लिए परचेज किया होता ना फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या है, असेट्स, तो असेट्स अकाउंट डेबिट होगा, बराबर. अगर हमारा गुड्स होता और फर्नीचर परचेज किया था तो गुड्स अगेंस्ट परचेज अकाउंट डेबिट होता. लेकिन यहाँ पे हमने फर्नीचर किसके लिए परचेज किया है, फॉर हाउस मींस पर्सनल यूज, तो कौन सा अकाउंट आएगा,
ड्राइंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट आएगा? ड्राइंग अकाउंट, बिकॉज इट इज अवर पर्सनल एक्सपेंस, हमारा पर्सनल एक्सपेंस है। और गंगा फर्नीचर मार्ट को पैसा देना बाकी हमें दिया नहीं है, तो गंगा फर्नीचर मार्ट अकाउंट, बिकॉज इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो जिस पर्सन का नाम होता है उसका अकाउंट आएगा। तो यहाँ पे किसका अकाउंट आएगा? गंगा फर्नीचर मार्ट। एंड इट इज अ पर्सन, विच पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। और आर्टिफिशियल पर्सन वो कौन है? गिवर। तो गिवर का अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। कितने का फर्नीचर है? 2000, तो 2000 रुपीज डेबिट कॉलम में, 2000 रुपीज क्रेडिट कॉलम में। तो यहाँ पे बीइंग क्या आएगा? बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर हाउस। बराबर ना, हमने क्या किया है? फर्नीचर परचेज किया है। किसके लिए? फॉर हाउस। फॉर हाउस मींस पर्सनल यूज। तो कौन सा अकाउंट आएगा? ड्राइंग अकाउंट आएगा। लास्ट 31, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ विच 500 पेड बाय चेक। तो 31 डेट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, लाइफ किसकी होती है? ओनर की। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये पर्सनल एक्सपेंस है, आपको याद रखना है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज पर्सनल एक्सपेंस एंड व्हेनेवर इट इज पेड फ्रॉम बिजनेस ड्राइंग अकाउंट विल बी इफेक्टेड। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड। अब आपको ये सब याद रखना है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओनर का एक्सपेंस है, वो बिजनेस से पे करता है, सो ओनर इज रिसीवर, ओनर इज अ पर्सन, सो इट कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट एंड ओनर इज रिसीवर ऑफ बेनिफिट, so his account is debited, his account means drawing account। क्लियर? कैसे पे किया? पेड बाय चेक। अब हम जब भी कोई एक्सपेंस बिजनेस में चेक से पे करते हैं ना, तो बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज बैंक इज गिवर। हम जब किसी को चेक देते तो पैसा कौन देता है? हम देते हैं, हमारी बैंक देती है। और बैंक कौन है? पर्सन। कौन सी पर्सन? आर्टिफिशियल। किसके कौन से अकाउंट में आती है? पर्सनल अकाउंट में। कौन सा रूल अप्लाई होगा? डेबिट रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। और आपको शॉर्ट में क्या रखना है? whenever we give check or whenever we issue check, bank account is always credited। बराबर? हम जब भी किसी को बिजनेस में चेक देंगे ना, तो बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। फिर आप किसी भी रीजन से देते हो, तो कितने का चेक दिया हमने? 500, तो यहाँ पे कितना आएगा? 500, और यहाँ पे कितना होगा? 500। सो व्हाट इज योर बीइंग? बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। तो जब भी हम चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट, बिकॉज बैंक इज गिवर, और गिवर का अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट, अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट। क्लियर? तो इस तरह से हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो आज हमने एक्सरसाइज नंबर 6 ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग ये देख लिए, और आगे जो इंग्लिश नंबर था वो भी हमने देख लिया है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ना, कि कब कैपिटल अकाउंट आएगा और कब ड्राइंग अकाउंट आएगा। क्लियर? Now tomorrow we'll discuss our next topic, that is transaction related with goods and assets. Okay? Now you have to note down this exercise in your notebook. इसके ट्रांजेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, जो टेक्स्ट बुक में ट्रांजेक्शन दिया ना वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। लेकिन याद रखना, ये कॉलम इस तरह से ड्रॉ करना है, जो मैंने पहले ड्रॉ किए थे दो पार्ट में, आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है नोटबुक में, आपको नोटबुक में ऐसे ही ड्रॉ करना है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट रुपीस, क्रेडिट अमाउंट रुपीस, और जब भी ट्रांजैक्शन ओवर हो आपको लाइन ड्रॉ करनी है इन पर्टिकुलर कॉलम। किससे? पेंसिल से। यू हैव टू यूज पेंसिल एंड स्केल, एंड एट लास्ट यू हैव टू टोटल। यहाँ पे जब ट्रांजैक्शन ओवर हो ना, यहाँ क्या लिखना है? टोटल, और यहाँ पे क्या करना है? जितने भी एंट्री हमने की है उन सबका टोटल लिखना है, दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।